Hi students, today we'll do about yesterday we have seen the ray diagram how image is formed. Now today we'll see what is sign convention and how sign convention is used because the object distance, the image distance, the focal length, the radius of curvature maybe sometimes negative, maybe sometimes positive. So you have to understand that when your V is positive, when your V is negative, when your focal length is positive, when it is negative, that these all things you will understand after learning the sign convention. So today, let us begin. What is sign convention? Sign convention. So few points you have to note down. The first point is in mirror, every distance, all distance uh, is measured from the pole of the mirror. From the pole mirror you have already written, correct. So हर एक डिस्टेंस जो है जो भी चाहे फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सभी पोल से ही निकालने हैं और को बोले इमेज डिस्टेंस दैट मीन्स द distance between pole and image. If radius of curvature, distance between pole and center of curvature. And if focal length, the distance between pole and focus. So every distance is measured from the pole of the mirror. So this is the first. Second one, the distance measured in the direction the distance measured in the direction of incident light is taken as positive. Taken as positive. First, you note down this, see, and then you will understand how when it is positive. When the distance is measured opposite to the direction of incident light, opposite to the direction of incident light, direction of incident light is negative. Is negative. D. Upward height, the height above principal axis. The height above principal axis is positive and इसी में नोट करा देते हैं and the height below the principal axis, the height below the principal axis is taken as negative. Okay, so these are the rules for convention, sign convention. All distances is measured from the pole. The distance measured in the direction of incident light is taken as positive. The distance opposite to the direction of incident light is negative. The height above
above principal axis is positive and the height below the principal axis is negative. So these are the rules. Now how will you apply rules? That you try to understand here. So this is you note and see how we are able to find which distance is positive and which distance is negative. Okay. Now, so see there, it is a concave mirror. This is your principal axis. Okay. Now the light will incident on the mirror in this direction. Okay. The light will incident in the mirror in this direction from the object to the reflecting surface. Now this one is pole. Now what is happening? Suppose you want to find focal length. The focal length means what? You're going, you measured every distance from pole. So start from pole and go to search the focus of this mirror. So when you are going to search focus, you will find that you are traveling against the direction of incident light. So this distance is measured opposite to the direction of incident light. And that is why the focal length of this mirror is negative. The first you find what is the direction of incident light. Second, you look here because every distance is measured from pole. So you start from pole and search where is the focus. Focus is here. So while searching the focus, you have to travel in this direction, in this direction. So this distance is measured opposite to the direction of incident light. Similarly, this one is center of curvature. Okay, this one is center of curvature. So somebody will ask you, what will be the sign of radius of curvature? So for radius of curvature, again you start because every distance is measured from pole. So you start from pole, go to search the center. So while you are going, you will find that you are traveling in opposite direction of incident light. So radius of curvature is measured opposite to the direction of incident light, hence it is also negative. Suppose this one is the object, this is your object. Okay. Now object distance. In optics, the object distance is symbolized here like this. Object distance is u. There is a symbol in optics. Image distance is v. Now see this is say this one is the object and this one is the image. This is your object and this one is image. Now you have to find object distance. Look here, you start from pole, search the object. In searching the object, in which direction you will have to go? तो ऑब्जेक्ट तो इधर में है तो आप ना इधर जाना इधर इधर तो जो ही आप इधर जाओगे तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज आल्सो नेगेटिव देन व्हाट इज इमेज डिस्टेंस लुक हियर द इमेज डिस्टेंस again you start from P and go to search image. Go to search image. You'll find the image distance is also negative because you are traveling in this direction, which is opposite to the direction of incident light. So this is the use of sign convention. अब आप देखो अगर आपसे पूछेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव है हाइट ऑफ इमेज क्या होगा ये नेगेटिव है क्योंकि हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव अब हम यही बात को देखें कन्वेक्स मिरर में चेक करें convex mirror now look here this is your
कन्वेक्स मिरर, ओके, तो रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है? इस साइड, लेफ्ट। तो जो इंसिडेंट लाइट आएगा वो इधर आएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ना इंसिडेंट होगा। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ध्यान दें इसमें कि ये पॉइंट है पोल, पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स you will measure object distance, start from pole and go to search the object. Object is in this position. So you have to go opposite to the direction of incident light. So object distance is u is negative. What about v? Image distance. इमेज डिस्टेंस के बारे में बताएं तो इमेज को सर्च करने के लिए पोल से शुरू करेंगे। इमेज इधर है तो आप इधर जाओगे, और जब जा रहे थे तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में चल रहे थे। इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो ये जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव होगा, तो v इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगा? फिर वही बात, स्टार्ट करें P से, फोकस को खोजें। आपको इधर जाना पड़ेगा, ये जो जा रहे हो, और इंसिडेंट लाइट को देखो क्या सेमी डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स सेमी डायरेक्शन है। तो F जो होगा ये इसका पॉजिटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर समराइज करें, आप सारे जितना भी रे डायग्राम बनाए उसमें सब में आप U V F R का साइन जरूर लिखें एंड यू डू द प्रैक्टिस। इसको अगर हम समराइज करें तो आप 2-3 पॉइंट आप हमेशा लिख सकते हो। पहला कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो पहला पॉइंट आप समरी करके लिखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है, हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ concave mirror, focal length of concave mirror is always negative। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, देख लें, क्योंकि इसके फोकस इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है। और इसी में लिख दें फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस साइन कन्वेंशन से ये कंक्लूजन निकला कि फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर का वो नेगेटिव आएगा, कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त जब भी आपको दिया हो ऑब्जेक्ट इतना दूरी पर है तो ऑब्जेक्ट के लिए माइनस लिखेंगे। अगर कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लिखेंगे, कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, तो इतना चीज तो आप एकदम इस जो कन्वेंशन है इसके कंक्लूजन है। हाँ, इमेज डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम है। तो इमेज डिस्टेंस में ध्यान रखो, अगर इमेज रियल है मतलब उल्टा है तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर इमेज सीधा है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, सीधा। तो आप लिख सकते हो फॉर रियल इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फॉर वर्चुअल इमेज तो इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस यही कंक्लूजन है इसका। ऑब्जेक्ट साइड की जितनी भी दूरी होगी, ऑल डिस्टेंस इन ऑब्जेक्ट साइड इज नेगेटिव, और उसके अपोजिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखोगे उस साइड की सारी दूरी जो है वो नेगेटिव ही होगी। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिख डालें कि
रियल इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा. दैट पॉइंट ऑल्सो यू मेंशन. डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव. ठीक है. मान लो हमने v निकाला, नेगेटिव आ गया, तो आपसे पूछेगा इमेज के बारे में बताएं, तो आप बता देना कि ये रियल इमेज है. तो लिख लो इमेज डिस्टेंस is negative for real image and positive for virtual image. ठीक है. तो ये इतना ध्यान रखें आप, इसको हमेशा मतलब दिमाग में रखोगे तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा. ओके. सो रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा. उस तरह से ऑब्जेक्ट में भी कभी कभी रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है. तो रियल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव. जैसे ही इमेज में है वैसे ही उसमें भी है. ओके. नाउ यू कम हियर. तो वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लास 12 में आप पढ़ेंगे अच्छा से. ओके. नाउ यू कम हियर. अब हम दो फॉर्मूला को डिराइव करेंगे. एक है आपको मैग्निफिकेशन. ओके. तो लीनियर मैग्निफिकेशन भी इसको बोलते हैं. राइट डाउन लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन. तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए लिखें इट इज रेशियो ऑफ height of image to the height of object. Ratio of height of image to height of object. So magnification you can write down linear magnification. So magnification M is equal to height of object. So आप लिख सकते हैं ना height of image पहले HI by HO. ठीक है. height of image to height of object. This is the definition of linear magnification. और इसके एक फॉर्मूला है जो हम लोग जस्ट डिराइव करेंगे और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. ओके. तो फटाफट करें. तो लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है, इसलिए हम लीनियर वर्ड यहाँ ऐड कर दिए. लेकिन 10th लेवल में जब भी आपको मैग्निफिकेशन भी बोले तो आप समझ लेना कि लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में ही पूछा जा रहा है. तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज सिंपली इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. Now you look here. How we will prove the formula for linear magnification. तो एक रे डायग्राम पहले ड्रॉ करें. आपने पहले ही प्रैक्टिस कर चुका है. You take a concave mirror. Any mirror you can take, there is no problem. ये फॉर्मूला कहीं भी आप प्रूव कर सकते हैं. This one is pole. This one is focus. This one is your center of curvature, and the object is placed outside the center of curvature. This one. This is A, this is B. Okay. Now we will draw here ray diagram. तो रे डायग्राम में पहला ही है कि आप ऑब्जेक्ट की टिप से एक पैरेलल रे ले जाते हो and it is allowed to incident on the mirror. So it will reflect and pass through the focus थोड़ा हम पहले बाद में ले लिए थे. The focus of the mirror.
तो पहला डायग्राम हमने कंप्लीट किया। दूसरा डायग्राम क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड रे यू अलाउ टू इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। सो this ray is incident, okay, at the pole, It does not look good. It is giving you not a correct message. So second day you take and you allow it to fall on the pole. थोड़ा और नीचे करें। हाँ, okay. So this ray is incident at the pole, and this one is reflected. Now these two reflected rays intersect. So intersect means this intersection will be the tip of the image. The image is formed here. So this one is what? A dash, and this one is B dash. Okay. Now you look here. We'll take two triangles carefully. The first is triangle ABP. Triangle ABP is similar to triangle A dash, B dash, and P. This is your triangle. How does it similar? This is 90 degree. This is also 90 degree. This angle is angle of incidence because the ray is incident at pole. So this angle is angle of incidence and this angle is angle of reflection. So law suggests you that these two angles are equal. The two angles of two mutual triangles are same. The third will be automatically same. So in this way, your triangle ABP is similar to triangle A dash B dash B. Okay. Now, so the ratio of two sides, you can say that you can write here AB by A dash B dash is equal to PA by PA dash. This is equation 1. सिंपल है, आपने एक रे डायग्राम ड्रॉ करें, एक लाइट रे पैरेलल ले जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, दूसरा लाइट रे को पोल पे इंसिडेंट कराओ, इट विल गो, और ये जो दो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ these two angles are equal and these two are 90 degree, so the two angles of two triangles are same, the third will be automatically matched, there is no problem at all. So if the triangles are similar, so the ratio of corresponding sides are also equal. So similarly we have written. What you do, you reverse the equation. So by reversing what you will get, A dash B dash by AB is equal to PA dash by PA. Now tell me, use sign convention here. Using sign convention. अब बताएं कि A dash B dash है क्या एक्चुअली? ये है इमेज का हाइट. तो इमेज का हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्योंकि ये बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस का तो ये नेगेटिव आएगा. तो लिखें -HI बाई AB, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये प्लस है तो यहाँ लिख दो +HO इज इक्वल टू, अब देखो PA डैश क्या है, तो PA डैश इज इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग B से डिनोट करते हैं. ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो PA डैश इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और PA डैश आप ऐसे जा रहे हो, तो नेचुरली ये अपोजिट है,
तो पी ए डैश जो होगा वो इमेज डिस्टेंस वो निगेटिव होगा, माइनस भी। और जो कि चूंकि ये रियल इमेज है तो होना ही था। और ये दूरी अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा निगेटिव ही लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट केस में। तो दिस इज योर माइनस यू, दिस माइनस विल बी कैंसल्ड। So tell me, what is HI by HO? So HI by HO is equal to minus V by U. And HI by HO is defined as the linear magnification. So the magnification M is equal to minus V by U. This is your important formula, formula number 1. करेक्ट। सो मिरर में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस वी बाई यू होता है। एक चीज आप ख्याल रखना, ये जो फॉर्मूला बनाए थे क्या साइन कन्वेंशन यूज किए थे? तो जवाब होगा यस किए थे। तो जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो भी साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन 2 बार यूज होता है, एक बार फॉर्मूला बनाते वक्त और एक बार इसको न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे, हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, देन अकॉर्डिंगली हम एम निकालेंगे। ओके, तो उस समय भी साइन कन्वेंशन लगाना है, नहीं लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो कभी भी नहीं मिलेगा। सो बी केयरफुल। अब चले इसकी बात करते हैं कि मान लो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर और जो इमेज है वो दिया हुआ है तुमको 15 या 12 सेंटीमीटर। अब हमको एम निकालना है। तो एम जब निकालेंगे ध्यान से देखें, ये जो u है वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव ही होता है, तो -40 भी रियल इमेज है, उल्टा इमेज है, तो इसका भी डिस्टेंस निगेटिव ही होगा, तो ये भी -12। अब m इज इक्वल टू होता है -v बाई यू, तो -12 बाई -40, एक माइनस तो छूट गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 3/10 माइनस। तो मैग्निफिकेशन आया निगेटिव, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखो, दो चीज देख लो, मैग्निफिकेशन निगेटिव है और 1 से छोटा है। 3/10 इज 0.3, तो 1 से छोटा है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा हो तो आपका जो इमेज होगा वो छोटा होगा, अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज जो है वो बड़ा होगा, अगर 1 हो तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर हाइट का होगा, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रियल इमेज बन रहा है। सो यू राइट, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज, magnification for real image is negative. मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव। एक चीज और करें, एक और फॉर्मूला है उसको भी प्रूफ करें, वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। चलो फटाफट मिरर फॉर्मूला। वैसे मिरर फॉर्मूला आपको प्रूफ जो है सिलेबस में है नहीं, बट फॉर योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग यू गो थ्रू दिस वन और समझे, क्योंकि आगे आपको पढ़ना ही है, तो इसलिए अभी आप देख लें। सो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ओके। तो मिरर फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, फिर से रे डायग्राम ड्रॉ करें। कॉनकेव मिरर ही ले लेते हैं, दिस इज योर कॉनकेव। सो एनी मिरर यू कैन प्रूव, convex also, for any position of object you can prove mirror formula.
दिस वन इज पोल, थोड़ा एफ सी एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, थोड़ा ऑब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं तो ए बी, रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें. You take a parallel ray and after reflection it will pass through the focus. Then second ray you allow to fall perpendicular on the mirror. तो perpendicular ray आपको पता है जब center of curvature से जाएगा तभी तो perpendicular होएगा. So I hope that I'm okay. This is incident. तो चूंकि perpendicular ray incidence हो रहा है तो naturally it will go to retrace its track. तो same path it will go back. तो रिफ्लेक्टेड रे इसका और इसका दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, रियली. सो दिस वन इज रियल इमेज ए डैश बी डैश. ओके, और इस पॉइंट का नाम आप कुछ डाल दो एम. थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी कर ले. इसको हम ऐसे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे यहां से, दिस पॉइंट यू कंसीडर एन, करेक्ट. अब देखें इसमें हम दो पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे. तो पहला पेयर क्या है वो आप देखो, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी. आई होप दैट यू आर सीइंग. ए डैश बी डैश सी छोटा ट्राइंगल है. आपको कैसे सिमिलर हुआ? बहुत सिंपल सा है. ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री. ये एंगल ज्योमेट्री में आप पढ़े हो, इट्स अ वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो दीज टू आर आल्सो इक्वल. सो यू लुक हियर. अब देखो तो अगर सिमिलर है तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो बराबर होगा. तो ए बी बाई ए डैश बी डैश is equal to CA by CA dash. ये भी साइड का रेशियो बराबर होगा, लेकिन इसकी जरूरत हमको नहीं है. CB by CB dash वो भी होगा, but we don't need of this here at this point of time. तो इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा. This is equation 1 you consider. Now second pair of triangle you look at. अब ध्यान से देखें, सेकेंड पेयर ऑफ ट्राइंगल जो है वो है NMF. ट्राइंगल NMF दिख रहा है आपको? इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश F. A डैश B डैश F कैसे सिमिलर हुआ? तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 90 है, ये भी 90 है, दो एंगल बराबर ही हो गया. आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो ही एंगल तो बराबर प्रूफ करना रहता है. तो सिमिलर ट्राइंगल है तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो बराबर आएगा. NM का करस्पॉन्डिंग साइड है A डैश B डैश इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, दूसरा जो है वो है आपको A डैश F, नहीं A डैश F नहीं, बड़े ट्राइंगल का लेना ना, NF बाई A डैश F. सो दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड को गौर से देखें. डिनोमिनेटर दोनों का सेम है डायरेक्टली, न्यूमरेटर भी सेम है इनडायरेक्टली. गौर से देखें, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच का दूरी है AB और NF. तो यू राइट ऑन, ये हुआ तुम्हारा, कोई इक्वेशन 2 डाल देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सबसे पहले आप लिखें
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश नहीं, ए बी, ए बी is equal to nm. This is the distance between two parallel sides. ओके, तो वो तो बराबर होता है। तो अब आप इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड देखो, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड देखो, बराबर होगा। जब लेफ्ट लेफ्ट के बराबर हो तो नेचुरली राइट राइट के बराबर होगा। सो यू कैन राइट, अब इतना नहीं लिखना है लेफ्ट लेफ्ट के बराबर राइट राइट के बराबर, आप सीधे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड जो है वो है आपको सी ए बाई सी ए डैश is equal to what? NF by A dash F. NF by A dash F. This is your equation 3. अब आप देखो, जो यहाँ पे हम लोग आधा काम कर चुके हैं कि जितनी भी दूरी है along the principal axis हम लोग निकालते हैं, और साइन कन्वेंशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सारे की सारी दूरी हम P से निकालते हैं। तो P वाला तो कोई डिस्टेंस है नहीं, तो इसलिए सबको हम P के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि CA में कहीं P नहीं है, C है, A है, CA डैश में भी वही हाल है, NF में वही है, A डैश F में वही है, P कहीं नहीं है। जबकि कन्वेंशन हमारा बोलता है कि एवरी डिस्टेंस इन द मिरर वी विल टेक फ्रॉम P पोल। तो क्यों ना हम CA को लिख सकते हैं PA माइनस PC, PA माइनस PC कैन बी रिटन, CA की जगह हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में P आ गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, आप खुद ही सोचो, CA डैश, तो CA डैश को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, ओके, PC माइनस PA डैश इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज हम मानेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, जो NF है, हम अगर ये मान ले कि NP के बहुत पास हो तो NF कैन बी रिप्लेस्ड बाय राइटिंग सिंपली PF। वैसे NF को हम लिख सकते हैं PF माइनस PN, और PN का वैल्यू बहुत छोटा होने से हम कैंसल कर लेते हैं। तो यू राइट डाउन इफ N is very close to P, then NF directly you can replace by PF। ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप मिरर फॉर्मूला प्रूव ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। NF can be replaced by writing PF, because we consider that if N is very close to P, then NF can be replaced by PF। अगला जो डिनोमिनेटर बचा वो बचा है तुमको A डैश F। तो A डैश F को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखें क्या लिख सकते हैं, A डैश F कैन बी रिटन एज PA डैश minus PF। So this is equation 4. Okay, now 75% work is over। तो हमने क्या किया, सभी के सभी डिस्टेंस को हमने P के टर्म में कन्वर्ट किया। अब हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। देखो इस केस में जो हमारा डायग्राम बनाया है, इसमें जितनी दूरी है सब तो लेफ्ट साइड में ही है, ऑब्जेक्ट साइड में ही है, तो सारे के सारे निगेटिव होगा, तो सब निगेटिव होगा। अब बताए पहला PA कौन सा दूरी है, PA कौन सा दूरी है, तो PA इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू कैन राइट हियर माइनस U, माइनस PC कौन सा दूरी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे PC और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2F लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो यहां पे लिख दो माइनस 2F,
माइनस 2f डिवाइडेड बाय पीसी की जगह हम लिखेंगे -2f माइनस पी ए डैश की जगह लिखेंगे -v। सारे माइनस साइन ही आएगा क्योंकि सारे आपको ऑब्जेक्ट साइड की दूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट साइड में पी एफ की जगह f लिखा हुआ है तो आप लिखें -f पी ए डैश दिस द इमेज डिस्टेंस, दिस इज -v माइनस f। ओके, सो यू विल गेट वन इक्वेशन। अब इसी को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहीं पर, तो इसको हम हटा दें। हाँ, नाउ लुक एट हियर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसी को करते हैं -u -v, तो ये हो जाएगा vu। करेक्ट, माइनस माइनस प्लस 2f इंटू -v, तो आप लिख सकते हो -2fv। अब इसके f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस f को -u से मल्टीप्लाई करो तो ये लिखेंगे -f इंटू u। ठीक है, फिर प्लस f को प्लस f से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, +2f² इज इक्वल टू, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, -f है इंटू -2f, तो क्या हो जाएगा 2f², -f इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस भी, ये हो जाएगा -fb। करेक्ट, तो 2f² तो कैंसल हो गया। अब क्या बचा, -2f भी इधर आने से सबको उधर ही ले जाए, तो देखते हैं क्या मिलता है। सबको उधर ही ले जाते हैं, आपको मिला क्या, vu -f भी इधर आएगा तो +f भी होगा, -2f भी पहले से है तो बचा -fv -fu इज इक्वल टू 0। ओके, देन द लास्ट स्टेप टू गेट मिरर फॉर्मूला। तो लास्ट स्टेप क्या है कि तीनों टर्म को हम UVF से डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग बाय UVF, डिवाइडिंग बाय UVF, ठीक है। तो UVF से अगर डिवाइड करो, सभी को करने हैं तो UV तो कैंसल हो गया, बचा 1/f -1/u -1/v इज इक्वल टू 0। यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसी को अरेंज करके लिखा रहता है बुक में, क्या लिखा रहता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। अगर प्रूफ आपको समझ आया ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लें, बट क्लास 10th में प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन मिरर फॉर्मूला जरूर पूछता है। तो मिरर फॉर्मूला ध्यान रखें, और आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आज के लिए आखिरी में जो हमें 2-3 चीज बताने हैं कि सपोज करो आपको मिरर फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ की जगह हम लिख सकते हैं r डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, यानी ये रेडियस के टर्म में, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में फोकल लेंथ की जगह आप r/2 लिख दो तो ये आ जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपसे बोलते हैं। अभी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूव किया था, m इज इक्वल टू -v/u। अभी कभी कभी एग्जाम में या अच्छे एग्जाम में पूछता है कि मैग्निफिकेशन जो मिरर का है वो क्या आप f
फोकल लेंथ के टर्म में आप लिख सकते हो एफ यू के टर्म में या एफ भी के टर्म में। तो क्या होगा वो भी हम कर लेते हैं। तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई मिरर फॉर्मूला बाय वी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक बार वी से एक बार यू से। तो हम वी से मल्टीप्लाई करके देते हैं, यू से खुद मल्टीप्लाई करना, देखना क्या फॉर्मूला आता है। तो आप अगर मिरर फॉर्मूला को वी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, v बाई वी प्लस वी बाई यू, 1 बाई वी 1 बाई यू, v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ। तो ये तो 1 हो गया। आप हमको बताएं कि v बाई यू क्या होगा इधर से। तो v बाई यू होगा v बाई एफ -1, करेक्ट, v बाई एफ -1। इसको अरेंज करके लिखो तो क्या हो जाएगा, v माइनस एफ बाई एफ। ओके, नो प्रॉब्लम ये। अब देखो, मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v बाई यू। तो अब उस टर्म में लिखना है, तो v बाई यू इज इक्वल टू दिस मच, तो -v बाई यू क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, आपने साइन उसको बदल देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। v बाई यू अगर आप जानते हो तो -v बाई यू भी आपको जानना होगा। सो आंसर विल बी f minus v by f. So this is another formula for magnification. तो आप इस तरह से आप कर सकते हो। सेम आपने करना, मिरर फॉर्मूला को u से मल्टीप्लाई करके देखना और फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाना, क्या आता है आप खुद चेक करो। सो आज के लिए इतना। आप प्रॉब्लम बनाएं, न्यूमेरिकल बनाएं। हम लोग सैटरडे को लाइव क्लास जुटेंगे तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम आपको बताएंगे, और बाकी जो है आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।